ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਟਐਵਰ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੂਪਸ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ today we are going to start with a new topic. Still ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। We are talking about the combination of registers, ਠੀਕ ਹੈ। combination of registers ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। Again this is the new day for the combination of registers and new method ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ how to solve the combination of registers. So sometimes, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ sometimes ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं आर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है, कि ऐसे सर्किट्स का रजिस्टर कैसे फाइंड करूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, गाना नहीं गाने लगा मैं, बट स्टिल whenever we are looking at these types of registers, ठीक है, combination of registers, ठीक है, we are not able to decide which one of is in this series and which one is in the parallel. देख के पता ही नहीं चलता, वाहिगुरु स्यापा, ठीक है, वाहिगुरु इन्ना वड्डा स्यापा है कि ए देख के पता ही नहीं चलता कि सीरीज केड़ा हैगा कि पैरेलल केड़ा है। एंड स्टिल दे वांट कि हां ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दसिए। सो whenever there are basically 90% of sums ਦੇ ਵਿੱਚ whenever there are a combination of 5 registers, ठीक है, sometimes there are 6 registers, कुछ registers 6 भी लगे होंगे, combination of 6 registers भी निकल जाता है, ठीक है। then these types of registers are solved by Wheatstone bridge, ठीक है, this method is solved by Wheatstone bridge, ठीक है। कनक पत्थर दा पुल, ठीक है, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੁਲ, ठीक है। basically this is the name of a scientist. Wheatstone is the name of the scientist जिसने ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन तैयार करके दिया था, ठीक है, और उसी के नाम के पीछे हमने इसका नाम रख दिया Wheatstone bridge. and we are going to find out कि what is Wheatstone bridge and how Wheatstone bridge is helping us to solve these types of combinations. Wheatstone bridge ਸਾਡੇ help ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ combinations ਨੂੰ solve ਕਰੀਏ, ठीक है। it is also a method to solve the various, जैसे potential method किया था, उसके बाद infinite series वाले method किए थे, उसी तरह से Wheatstone bridge is also one of the method to solve these types of questions. बहुत important है, ठीक है। and you will find out कि हाँ कि this topic पता ही नहीं चलिया कदों इतना ईजी हो गया, ठीक है। एंड डू शेयर, मतलब मैं जो YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਗਾ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, and I have find out कि हाँ this is the right method के बच्चे ਨੂੰ सिखावांगे ਤਾਂ ਬੱਚਾ easily ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ whenever you are watching the recording lecture ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, so that ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। सो ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ,
capacitors, 5 capacitors or 6 capacitors whenever are arranged in this form of a bridge, even then equivalence of the capacitor can also be solved by this method. ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 90% ਆਫ ਕੇਸਿਸ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਅੰਡਰ ਵਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन यू गेट टू नो अबाउट के हाँ यार ਇਹਦੇ ਚ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਗੇਗਾ, अंडर व्हाट कंडीशंस we can find out that we have to use Wheatstone bridge. Then बेटा सिद्धि जी गल कह रहे हैं, ठीक है, whenever there is a combination of 5 resistors, at least 5 resistors, ठीक है, अब और कह रहे हैं और 6 resistors, 90% चांसेस आर देयर कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, और कोई मेथड नहीं है इसे जानने का। ये 90% ऑफ चांसेस आर देयर कि व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल होगा। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज, ये फर्स्ट पॉइंट है, एंड द सेकंड वन, ब्रिज को देखने के बाद, मतलब कॉम्बिनेशन को देखने के बाद मुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, आप पीछे चेक करके देखो, इनमें से R1, R3, R5, R4, R2 देख के पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सीरीज में और कौन सा आपस में पैरेलल में निकल गया। ठीक है, सो देयर आर टू कंडीशंस जिसे देख के पता चले कि व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता है। द फर्स्ट वन इज कि 5 रजिस्टर्स कम से कम लगे होंगे, या कभी कभी बहुत रेयर चांसेस है, कंपटीशन की बात करें तो 6 रजिस्टर्स आ जाते हैं, तो 90% चांसेस है कि मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम सेकंड पॉइंट निकल के आता है, आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें देख के पता चल जाता था कि कौन सा सीरीज में आएगा, कौन सा पैरेलल में निकल के आएगा। ठीक है, या पोटेंशियोमीटर मेथड लगाते थे, पोटेंशियल मेथड अगर लगाते थे तब उसे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को देख के, पोटेंशियल मेथड लगा के जब हम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिखाते थे तब पता चल जाता था सीरीज में है कि पैरेलल में। ठीक है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज को देख के पता ही नहीं चलेगा कि कौन से रजिस्टर्स आपस में सीरीज में निकल के आ रहे हैं, एंड विच वन आर कमिंग इन द पैरेलल, विच वन आर इन द पैरेलल। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू चेक अबाउट द बैलेंस्ड, we are going to discuss about the balanced Wheatstone bridge. ठीक है, this is the topic. ठीक है, there are, मतलब दो तरह के निकल के आएंगे, एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज निकल के आएगा, एक आएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या, अब ये मेरा मेन मोटिव है। We are going to discuss about the balanced Wheatstone bridge. ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हुंदा की आप ऑन दे उत्ते डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर। कैटरपिलर ड्रॉ करेगा, कैटरपिलर 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 कुछ 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 कुछ। ठीक है, this is the R5, this is the R1, this is R2, this is R3, and this is R4. You get to know. This is the same for Wheatstone bridge, and we are going to discuss about the balanced Wheatstone bridge. ठीक है यार, 3 लैंग्वेजेस च पढ़ाना देखो कितना औखा काम है। पंजाबी जी भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी जी भी पढ़ा रहे हैं, and even I am using the foreign accent of English. Then मैं जे थे A बनावा, इत्थे जे B बनावा, we can imagine कि बैटरी इस डायरेक्शन दे विच लगी हुई, we can imagine कि बैटरी आ लगी हुई, we can imagine a battery इतना लगी हुई, where this one is the higher potential
and this one is the lower potential. Higher as well as lower potential. And remember one thing, एक चीज बिल्कुल याद रखियो कि that current flows from higher to lower potential. प्लीज कृपया अपने नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। वैसे तो अपने हाथ से ही नोट बनाओ, अगर अपने हाथों पर आप मेहंदी लगा के बैठे हुए नहीं बन रहे नोट्स, तो टेंशन मत लो, उन निकम्मों बच्चों के लिए मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे पहले यूनिट की थी, सेकंड यूनिट की भी कर दूंगा, ठीक है। देन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट मींस इफ आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस, ठीक है, आई करंट इतने आगे की हो जाएगा, दो पार्ट से डिवाइड हो गया, I1 एज वेल एज I2. I1 as well as I2. Then if ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ, ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। if current I ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, instead of dividing here, current I ਇੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਵੇ and I2 again going in this direction, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ठीक है। it means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ no current is there, then under this condition Wheatstone bridge is balanced. Wheatstone bridge ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, balanced ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ R5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ when in the R5 there is no current, otherwise ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਵਾਂ, I1 ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, I2 ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ R5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ, ठीक। दोबारा दस रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो ब्रिज हैगा वा व्हेन R5 जेड़ा सेंटर च मेरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, व्हेन R5 दे विचों कोई करंट विड्रॉ ना, कोई करंट पास ना करके जा रहा हो, व्हेन R5 दे विचों कोई करंट पास करके नहीं जा रहा, इन दैट केस व्हीटस्टोन ब्रिज इज नोन एज बैलेंस्ड ब्रिज। मींस मैं इतने डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फिर मैं जे इनू नाम दे देवां x दा, एले पॉइंट नू नाम दे देवां y दा, ओल्दो बहुत गंदी फिगर है, मैं ऐदा ही पढ़ाना गंदी फिगर्स दे नाल ही मैं खुद नू बड़ा औखा लगदा। चलो, बट मेरा इतने क्वेश्चन है, हुशियार बच्चे नू पूछने हैं, जसलीन मिस कौर मेरी फेवरेट, इन क्वेश्चन पुट करके मजा बहुत आंदा, ठीक है। ते चलाक इन्नी हैगी है, बोल के घट रिप्लाई देंदी है, लिख के ज्यादा रिप्लाई देंदी है। फिलहाल हुण बोल के रिप्लाई देना जसलीन। बेटा एक्स एंड वाई मेरे दो पॉइंट्स नजर आ रहे थे, वो गुंगी बोल दे हाँ, वेरी गुड आ गई तेरी आवाज। बेटा मैंने ये दोनों का पोटेंशियल दस दे, फिर की है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दे विच, अंडर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ जी जसलीन उच्ची बोल, शायद जीरो। ओहो चल दूजे नंबर दे हलीम नू भी क्वेश्चन पुट करना अच्छा लगता मैंने, क्योंकि रिप्लाई मिलता। हाँ जी हरलीन, देखिए रिप्लाई तो मिलता ही है ना, भले ही पता नहीं मिल जाए, नहीं तो कई तो इदा दे अगे जो पूछते रहो, ओ भाई बोल दो, रिप्लाई नहीं मिलता। फिलहाल
मैं आ जाना सब तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेटर दे उत्ते, दमन एंड बमन दोनों जो कोई एक जना फटाफट रिप्लाई कर दो, जे नहीं पता तो फटाफट हरलीन की तरह रिप्लाई कर दो, पता नहीं सर। हाँ जी दमन 0 ओ ओ ओ ओ ओ ओ बबन तेरा की रिप्लाई उत्तर? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जीरो पोटेंशियल नहीं होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम व्हेनेवर दो डिफरेंट पॉइंट्स। हूं मैं पहले ही मार्क किया सी, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जे पोटेंशियल सेम निकल के आ जाएगा ये दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर R5 रजिस्टर वास्ते, इट मींस x एंड y ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो इक्वल निकल के आ रहा है। both are on the same potential, both are on the same potential। क्लियर हो रही है? नो डाउट कईयां ने जीरो रिप्लाई दिता जरूर, बट जीरो इज नॉट द करेक्ट आंसर। रीजन देना एवरी टाइम जे पोटेंशियल मैथड जे याद होवे ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ a ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ b ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, b ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਮੈਂ 0 b ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ x ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ x ਤੋਂ b ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, that is known as I1 and current flows from higher potential to lower potential। it means x ਦਾ potential at least 0 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ a ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 0 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, both are on the same potential, ठीक है। under this condition then main condition की निकल के आ रही है, then remember one thing, R1 upon R2, R1 upon R2 is equal to की निकल के आएगा R3 upon R4। so this is the formula, with the help of this formula ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਜੈਂਟਾ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਜੈਂਟਾ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ R1 ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਦੇਖੋ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। whenever there is a condition in the question that this is a balanced Wheatstone bridge, या ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ this is a balanced Wheatstone bridge by using this condition, ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ whether this is a balanced Wheatstone bridge or not, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। in this case ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆ balanced Wheatstone bridge ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि मैं विचकार वाला रेजिस्टेंस रिमूव कर सकता। वी कैन रिमूव R5, मैं करके भी दिखाता है, ठीक है। जे R5 दे विचों बेटा जी कोई करंट ही नहीं पास कर रहा, then we can remove R5, ਅਸੀਂ रिमूव कर सकते हैं R5, ठीक है बालको ते बालिकाओ, ठीक है। बोल दो गुंगो, जो पूछा करा ना ठीक है, तो समझ आया हो सारे अपने स्पीकर ऑन करके इकट्ठा यस बोलदा करो, सुनने च मैनू भी अच्छा लगेगा कि समझ आ रहा है इन्होंने। अरे आज तो खुशमीत भी आई है, खुशमीत समझ आ गया बेटा? ओके ओके, खुश होके कह रही है कि एवं? चलो ठीक है। फिलहाल मैं बहुत लाइट मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਲੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਨਵ ਆਂਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਣ, ਨਾ ਹਰਨਮਨ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
दैट इज द रीजन मैं चलो थोड़ा जिहा मजाक भी कर लियो। चलो मैं अगे बढ़ रहा, ठीक है, ज्यादा मजाक नहीं करना, बबन गुस्सा कर जाता। चलो हम आंदा आने इनके प्रूफ दे उत्ते। प्रूफ नोट कर लियो, प्रूफ इनका बड़े ध्यान नाल करियो नोट, ठीक है। मेरे को जगह घट होएगी इस करके मैं पहले ही माफी मंगदा होंदी। चलो कैटरपिलर ड्रॉ किया, अगेन कैटरपिलर ड्रॉ किया, R3, R4, R5, R1, R2, ठीक है। सो इमेजिन ए बैटरी, इतने खुद ही कर लियो इमेजिन बैटरी, ये बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट्स दी, एंड दिस इज A, this point is A and this point is B, ठीक है। दिस इज V वोल्टेज, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। आ गया हर नंबर, ठीक है, इतने तक ठीक है। सो यूजिंग पोटेंशियल मेथड आप डिस्कस किया सीगा, पोटेंशियल मेथड, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, ठीक है। With the help of potential method, if this is the higher potential, we can consider A on a V potential. This is connected to the lower potential, so B is on the lower potential, that is 0. That is 0. ठीक है। Now, if I current इथों दी जा रहा है, it means this is also on the V potential. This point, आला point जे तुसी देखोगे, this is also on the V potential, ठीक है। Similarly, this potential, this point is also on the zero potential. This is on the zero potential. Now, since there is a resistance, caterpillar नजर आ रहा है, this is in the form of a caterpillar. जे थे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इट मींस पोटेंशियल की कर देगा, चेंज हो जाएगा। इतने एक्स पोटेंशियल आ रहा है, इतने करंट जा रहा है I1, सिमिलरली दिस इज अ करंट I2, सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है कि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा Y। सो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मेथड ਅਸੀਂ सारे पॉइंट्स से पोटेंशियल्स कंसीडर कर लें, ठीक है, सारे पॉइंट्स से पोटेंशियल कंसीडर कर लें। सो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, assume there is no current in the mid register R5 चो, मतलब we are driving the condition for the balanced Wheatstone bridge। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ with the passage of time what we have discussed that कि R5 के बीचों, R5 के बीच में से कोई करंट पास नहीं करेगा। So starting assume that there is no current in the mid of the resistor R5, ठीक है। If now हम consider देखो हमने कर लिया, if there is no current, then potential difference at X and potential difference at Y is same. Let it be Vx, आप की मान लिया Vx मान लिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एट X एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट Y की होएगा, फिर सेम होएगा। लेट इट बी Vx, मैं मान के चल रहे हैं वो Vx मान के चल रहे हैं, ठीक है, Vx मान के चलो, ठीक है। टू प्रूफ, यहां से निकल के आया मेरा टू प्रूफ R1 upon R2
इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3, ये रहा R4। ठीक है, नाउ यूजिंग द पोटेंशियल मेथड, आस्था देवी स्पीकर ऑन कर लो। आस्था, अब पता चलेगी तेरी कितनी आस्था है पढ़ाई में। पोटेंशियल मेथड वाला लेक्चर देखा था? ओके, ठीक है। तो मिस आस्था, मुझे ये बताइए, अगर ये वाला पॉइंट ए कंसीडर कर दूं एंड ये वाला पॉइंट बी कंसीडर कर दूं, तो AX के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? और अगर आस्था तूने नहीं बताया ना, तो देखिए फिर मैं देखो ना व्हाट्सएप के ऊपर एक थप्पड़ भेजने वाला हूं, वो अपने मुंह पे अपने आप लगा ली। अरे यार, इतने ਦਾ ਰਣਜੀਤ LKG ਚ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। whenever ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ। चल कौन आएगा फिर? गुरलीन, गुरलीन मेरा टाइम ना वेस्ट करियो, आंदा है तो सीधा रिप्लाई दे दो। ए एंड एक्स के विचकार पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा? वाहिगुरु, सिंपल है। मेरी दोबारा डायरेक्शन दे ध्यान है, मैं करंट दी उत्ते कुछ डायरेक्शन दसी है गुरलीन। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? करंट ऐदा ही फ्लो करता है ना गुरलीन? चलो फिर गुरलीन, ऐसे करंट की डायरेक्शन निकल के आ रही है I1 इन दिस डायरेक्शन, मैं बार बार शो कर रहा हूं। फिर हायर पोटेंशियल से A होएगा कि X होएगा? वाहिगुरु, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। A तो X वाल जा रहा है, फिर A क्या होएगा? वेरी गुड, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा? हायर पोटेंशियल, सो 4 वायर AX। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा? V माइनस VX इज इक्वल टू, दिस टाइम ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ ऑन द वायर AX क्या आएगा? I1 R1, this is my first equation, this is my first equation। हम समझ आया आस्था? चल फिर कोई गल नहीं आस्था, एक्स बी वायर दे उत्ते हुन तू ही दसेंगी फिर, ते जे हुन ना दसिया ना तू मतलब कि झूठी है तू। चल कर लिया सॉल्व? हाँ पे बोल के दस। 4 वायर एक्स बी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा? रिमेंबर वन थिंग, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। एक्स पॉइंट का पोटेंशियल असि Vx कंसीडर करके चल रहे हैं। सो 4 वायर एक्स बी कितना निकल के आएगा? Vx कंसीडर कितना है? 0। वाहिगुरु, होशियार हो गया। सो Vx माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इनके उत्ते ओम्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा? I1 R3। वेरी गुड आस्था, हम समझ आ गया। ठीक है, चलो फिर 4 वायर हम सब नु समझ आ जाएगा। 4 वायर A वायर
अगेन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। ए का पोटेंशियल की है V है, V वाई का की बनने आया सीगा Vx की कंसीडर कितना Vx बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम पोटेंशियल Vx। अगेन ओम्स लॉ लगाया I2R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा 4 वायर YB, ठीक है। तो की होएगा फिर अगेन Vx माइनस 0 इज इक्वल टू I2R4, I2R4, ठीक है, क्लियर है। सो वी आर हैविंग 4 इक्वेशन सॉरी, ठीक है। वी आर हैविंग 4 इक्वेशंस। मैं उन्हें 4 इक्वेशंस को इधरली साइड पे लिख रहे हैं। V माइनस Vx इज इक्वल टू I1R1, Vx is equal to I1R3, this is first equation, this is second equation, then V minus Vx is equal to I2R2, तुसी ये लिख लिया होगा। फिर Vx is equal to I2R4, this is the fourth equation, ठीक है। हरनमन, ओ हरनमन, हाँ मेरे शेर हरनमन, टू प्रूफ तेरे को लगा R2/R1 इज इक्वल टू R3/R4, नजर आ रहा है हरनमन, ठीक है बेटा। मैंने आज 4 इक्वेशंस जो आप प्रूफ करके दिखा दे, चल दिमाग लगा। जे तेरे तो ना निकलिया ना फिर BCM जमालपुर वाला एक होर बच्चा लभांगे। आई मजा आ रहा है ना पढ़ के। तरन की हाल है पुत्र? आफ्टर लॉन्ग टाइम बेटा स्पेशल क्लास तेरे करके ही है। अच्छा तरन विजय हम तेरे करके मैं इतना कुछ किया। अरे यार सेशन एक्सपायर हो गया। वेट फॉर ए मिनट, 1 मिनट, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अगेन। वेट 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 वेट। एक मिनट बेटा, वेट ए मिनट, सभी को ज्वाइन करो। अच्छा की कह रहे, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी गुरकीत की कह रहे हो? चलो मैं एक मिनट तरन ना गल कर रहा। तरन वी वांट ए रिजल्ट R1/R2 is equal to R3/R4। चल पे सोच के 10 पुत्र किया होगा, दिमाग लगा। हो गया, वेरी गुड। सो की होएगा देख के ही पता चल रहा है सानू। फ्रॉम या इदा करते हैं, डिवाइड 1 and 2 and 3 and 4, तो की निकल के आएगा V minus Vx अपॉन V minus Vx।
ठीक है, I1 अपॉन I2 R1 अपॉन R2, ठीक है, कटिंग हुई 1 इज इक्वल टू I1 R1 I2 R2, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली करके लिख रहे हैं, वो भी 1 आ जाएगा, क्या आएगा I1 R3 I2 R4, दिस इज सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम 5 and 6 I1 R1 I2 R2 is equal to I1 R3 I2 R4। भाई राइटिंग इतना दी हुई है, यू हैव टू एडजस्ट। चलो, दिस इज माई आंसर, आ गया। सो दीज आर बेसिक स्टेप्स, मुश्किल नहीं है। द थिंग इज इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम एंड अचानक टीचर क्वेश्चन कुछ कर लेंदा वा ते समटाइम्स बच्चा बोंदल ही जांदा वा, वो सोचदा पता नहीं की करी जांदा यार, मैनू ही को पूछया, ठीक है। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो वैसे मैं आज दे सैशन च न्यूमेरिकल्स भी रखे सीगे, बट मैं आज नहीं न्यूमेरिकल्स करवा रहा, मैं हुण कल ते ले जाऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स का फिर अलग सैशन बना दूंगा एक। सो आज थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के उत्ते रखते हैं, ते बार बार कह रहे हैं एक गल कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ताए एप्लीकेशन मतलब ताए रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल। दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन दैट केसेस वेयर व्हीटस्टोन इज ए बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन बैलेंस्ड कदों होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे नाल समझा देना। फॉर एग्जांपल, सब एक ना एक कैटरपिलर जी कंडोए, अरे यार R3 यहाँ पे R3, ये R4, अगर ये निकल के आया 2, ये निकल के आया 4, ये निकल के आया 3, ये निकल के आया 6 और ये निकल के आया 8, तो ये ठीक है। और ये बैटरी, हाँ जी, ये बैटरी निकल के 12 वोल्ट, ये बैटरी निकल के 12। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? क्या स्लाइड पिछले करा, पिछला पेज आ गया बेटा। जो नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ जी, 1/3 1 and 3 ਨੂੰ ਹੀ डिवाइड किया। हाँ जी, 1 and 3 आएगा। अरे बाप रे हरनमन, वाहिगुरु, इतनी बड़ी गलती निकाल दी तूने। वाहिगुरु वाहिगुरु, पढ़ लग पिया। क्या बात है, लगता हरनमन का ब्रेकअप हो गया, पढ़ा लग पिया। चलो, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल। चेक करो इतने R1 upon R2 क्या निकल के आ रहा है, 2 upon 4, that is 1/2। Similarly R3 upon R4 3/6, that is again 1/2। Therefore R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। ठीक है, ये कंडीशन लग रही है। Therefore bridge is balanced, and if the bridge is balanced, remember one thing, and if the bridge is balanced, ठीक है, we can remove, बेटा इनके विचों कोई करंट नहीं जाएगा,
ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ clearly if a current I comes from this side, ਇਹ I1 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ I2 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I1 ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ मतलब R1 and R3 are in series. Similarly R2 and R4 are in series. ठीक है, जे सीरीज है एंड सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कितना निकल के आएगा, ऐदा। दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, सब बनाओ। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R3, दिस इज R2, दिस इज R4। सो फिगर की होगी, इजी। नाउ सीरीज एंड पैरेलल can be judged. ठीक है, so this is the method how a Wheatstone bridge works, and the एक practical application भी निकल के आएगी। ठीक है, slide wire bridge, that is the practical application of Wheatstone bridge, and for tomorrow we are going to solve some numericals on the Wheatstone bridge. This is the first part of the Wheatstone bridge, ठीक है, जिंदे च ਅਸੀਂ theory discuss ਕੀਤੀ है, and tomorrow there will be the second part of the Wheatstone bridge that will include numericals, and numericals and ਇੰਨੇ interesting ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। if you have enjoyed this first part, ਤੇ numericals ਦਾ part ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ enjoy ਕਰੋ। ठीक है जी, सो फॉर टुडे फिजिक्स का पोर्शन बस इन्ना की रखते हैं, वापस कल आने हैं, कल मिलते हैं। सो प्लीज मैं इनका लिंक जोड़ा है जल्द तो जल्द शेयर कर दांगा। प्लीज मैं हमेशा एक गल कहना वा, रिमेंबर वन थिंग, ਤੁਹਾਡੇ आस-पास स्टूडेंट्स ਨੂੰ Wheatstone ब्रिज हो गया या पोटेंशियल ब्रिज हो गया या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बहुत प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। लिंक्स बेशर्ते उन्होंने ना शेयर कर लियो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ਤੇ whenever ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾਣਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਕੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।